Okay. Respected dignitaries, the boisterous and proactive conveners of this cluster activity, honorable coordinators, esteemed resource person, technical staff, and my dear students. A very pleasant morning to one and all who have converged virtually for the third day of 2-week online classes 2021-22 on the syllabus of BA Semester 4 Compulsory English prescribed by Rashtrasanta Tukroji Maharaj, Nagpur University, Nagpur, jointly organized by the Department of English of Barrister Sheshrao Wankhede Mahavidyalaya Mohpa, Nabira Mahavidyalaya Katol, Dr. M.K. Umathe College, Nagpur, and Jawaharlal Nehru Arts, Commerce and Science College, Wadi, Nagpur. I, Dr. Vaishali Meshram, Assistant Professor of English at Dr. M.K. Umathe College, Nagpur, feel honored today to welcome you all on the third day of this two-week knowledge feast. Friends, we have a notable, a sagacious, and a versatile scholar, Dr. Umesh Bansod, sir, in our midst today. Dr. Bansod sir is working as an associate professor of English at J.M. Patel Arts, Commerce and Science College, Bhandara. He is a recognized PhD supervisor. He has uploaded 188 videos on his own YouTube channel named as Grammar Planet. He has published 58 research papers in the national and international journals of repute. He has 6 books to his credit. To name a few, he has written Dr. Babasaheb Ambedkar's contribution to English literature as an essayist, Gateway to Ambedkarite Literature, Flying Words. This is an anthology of English poems. Then Agaz, The Beginning, again an anthology. Then he has written Babhija Savalit and Tujhas More. He has also been awarded Dr. Ambedkar's National Fellowship Award. He is the founder secretary of Siddhartha Education Society Bhandara and New Link Literary Association Bhandara. He is a patron of Dreamland CBSC Public School Bhandara. We are extremely delighted to have you here with us today, sir. I accord an affable welcome to you. Without much ado, I now invite today's notable resource person, Dr. Bansod, for his scholarly presentation. Today, sir will deal with The Diamond Necklace, written by D.D. Maupassant. Dr. Umesh Bansod, over to you, sir. Yes. Vishali ma'am, am I audible now? Hello. Yes, sir. You are audible. But your voice is breaking actually. There must be some connectivity issue at your end. Can you hear me now? Yes, sir, but not properly. Yes, sir. Everything is okay from my side. I don't know why the voice is breaking. Yeah, it's visible, sir. Okay. Okay. Should I start? Please, yes, sir. Please go ahead. Please. Dear students, today we are discussing about The Diamond Necklace by Gita Maupassant, and we will try to understand what does the writer wants to convey through this lesson, through this extract, through this story. And this is not the story of France-based people. This is not the story of a single country, but this is the day-to-day story of every household, every family. How the ambitions and how the kind of attitude to make a show of something brings some kind of disaster in the personal life the writer wants to convey through this story. The diamond necklace will compel you to think about many things and social situations of the middle class princess. Let us talk about Guy de Maupassant, who himself is a great French writer and belongs to the group of naturalists. And
the people, when people thought about depicting the lives of rich people only, royal people only in the stories, the people like Guy de Maupassant talk about the middle class and the people of less privileged class. Now, what are their issues? What are their problems? What is the feminine attitude towards this all comforts? Guy de Maupassant talks about these all things. Hundreds of stories he has written. One of the most prolific and famous story writer who has entertained the world for since last 200 years. And his stories display the touch of pessimism though, but seems to reflect the sense of futility to life. Guy de Maupassant फ्रांस के बहुत जाने वाले राइटर थे। अपने गुरु से उन्होंने जब इस बात को सीखा तो कहानियों में मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स को दर्शाने का एक सक्सेसफुल प्रयास ये de Maupassant करते हैं। इसके पहले की बहुत सारी कहानियों को आपने जब भी पढ़ा होगा तो रईस परिवार की कहानियां हैं, शाही परिवार की कहानियां हैं, राजाओं की कहानियां हैं, रानियों की कहानियां हैं। बट the diamond necklace is not the story of any queen or any king. This is very much story of you and I. ये कहानी आपकी और मेरी कहानी है। बहुत गरीब होना ठीक है या फिर बहुत रईस होना ठीक है, मिडिल क्लास इस दोनों के बीच में आता है। And whenever we think about the middle class, we do think about their situation, which is very much suffocating for them to adjust many things in their lives. अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें एडजस्ट करते करते कितनी जद्दोजहद से मिडिल क्लास को गुजरना है और उसकी क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इसका एक वर्णन। भले ही कहानी एक निराशा की तरफ ढकलती हो, पर गीत Maupassant रियलिटी की फैक्ट की बात करते हैं। This is the story of less privileged couple Mathilde and Loisel. दो कैरेक्टर अहम किरदार है इस कहानी के, मैथिल्डे और लॉइसल। एंड पत्नी बहुत सुंदर हो, पति एक साधारण सा क्लर्क हो, तो किस प्रकार की एक कश्मकश परिवार में चलती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक साधारण से क्लर्क की कहानी और बेहद ही सुंदर दिखने वाले मैथिल्डे की कहानी आपस में जब टकराती है तो Guy de Maupassant एक बहुत बेहतरीन कहानी रीडर से शेयर करते हैं। एंड लॉइसल मैनेजेस टू ऑब्टेन, कहानी तो शुरू होती है कि किसी न किसी तरीके से लॉइसल डिपार्टमेंट से इनविटेशन हासिल कर लेता है। This is the story about about a couple, and anyhow he manages to adjust an invitation from the ministry, and even after having such an invitation from ministry, Mathilde is unwilling to go as she owns no fine clothes to show off at the party. इतना बड़ा invitation party से मिलता है, पर परेशानी मैथिल्डे की क्या है? दिखाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है पार्टी में पहनने के लिए। मिडिल क्लास की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। दिखावे के चक्कर में हम न जाने क्या क्या चीजें एडजस्ट करते हैं और कर्जे लेकर अपने आप को बहुत कुछ शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं। इसके परिणाम क्या भुगतने पड़ते हैं, इसका वर्णन Guy de Maupassant इस कहानी में करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो Guy de Maupassant इस कहानी से अंडरलाइन करते हैं, what follows is an excellent insight into the material objects. We are running after materialistic things nowadays, and the present generation, for the sake of pacifying themselves, satisfying themselves, they are running after things only. Maupassant underscores the lack of consistency and meaning in objects that determines one's identity in the society. कौन सी चीजों से हमारी आइडेंटिटी समाज में बनती है, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अब यहाँ पर जो अहम किरदार है उसको भी समझने की, एक फेमिनाइन नेचर की, स्वभाव की नेचुरल बात करते हैं। बात समझ में आती है कि Guy de Maupassant का ऑब्जर्वेशन कितना बारीक रहा होगा। जिस कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं, शी वाज वेरी चार्मिंग गर्ल एंड बॉर्न बाय ब्लंडर ऑफ डेस्टिनी इन द फैमिली ऑफ एम्प्लॉइज। बहुत सुंदर है मैथिल्डे, चार्मिंग है, ग्रेसफुल है, एलिगेंस है, इतना सब कुछ सृष्टि ने दे दिया, एक ब्लंडर कर दिया। राइटर यूजेस द वर्ड ब्लंडर ओवर हियर, नॉट अ मिस्टेक। यहाँ पर Maupassant बहुत सुंदर तरीके से शब्दों का यूज भी करते हैं। ब्लंडर शब्द का इस्तेमाल किया, जैसे नियति ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो
मैथिल्डी को एक साधारण से एम्प्लॉय के परिवार में जन्म देकर, क्योंकि she had no dowry, no expectations, no means of being known, understood, loved, and married by a man rich and distinguished, and she laid them make a match for her, a little clerk in the Department of Education. एक साधारण एम्प्लॉय के घर में जन्म लेने के बाद में क्या उम्मीदें की जा सकती है? ना कोई रईस पति मिल सकता है, ना कोई प्यार कर सकता है, और ना कोई फेमस करा सकता है, ना कोई पॉपुलैरिटी मिल सकती है। इतने सब कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर मिडिल क्लास के, Mathilde decided and allowed her family to find a husband according to their choice, and she got ready to marry with a very ordinary little clerk. एक साधारण से क्लर्क के साथ शादी करने के लिए Mathilde राजी तो हो गई, but she was very simple. She could not be alone. बहुत सिंपल थी, और इतनी सिंपल थी पर देखने में बहुत सुंदर थी, पर गहने कहाँ से लाए खुद को सजाने के लिए, इसलिए वो बहुत दुखी रहती थी। She was very unhappy. यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, ये जब कुछ फेमिनाइन नेचर के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। Women have no caste. सुंदर महिला की अपनी कोई जाति नहीं होती, सुंदरता अपने आप में उनकी एक कास्ट क्रीड होती है। नो रिसेंट किसी का फैमिली ओरिजिन देखने की जरूरत नहीं, उनकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है देखने की जरूरत नहीं। देयर ब्यूटी, देयर ग्रेस एंड देयर चार्म सर्विंग देम इंस्टेड ऑफ बर्थ एंड फॉर्चून। सारी किस्मत की लकीरों को बदल सकते हैं अपनी खूबसूरती से। उनकी खूबसूरती ही उनके लिए सबसे बेहद अहम इंपॉर्टेंट है। ये राइटर कहते हैं, their native keenness, their instinctive elegance, flexibility, mind, and other their only hierarchy. ये सब उनके अंदर जो ब्यूटी है, कीननेस है, ईगरनेस है, ये सारी हायरार्की ऑर्डर ऑफ सिस्टम में अगर लगा भी दी जाए तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, ब्यूटी प्रिवेल्स। शी सफर्ड इंटेंसली। शादी होगी, एक साधारण से क्लर्क से भले ही शादी हो, पर she finds for each and everything whatever she wants in her life. अपनी जिंदगी में जो कुछ चीजें वो लाना चाहती है, उसके लिए हमेशा वो दुखी है। सुखों की कल्पना अपने आप में करना, कंपैरिजन में डाल देना खुद को, और फिर खुद ही दुखी हो जाना, ये मनुष्य का स्वभाव रहा है। यहाँ पर एक बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट कोट करनी चाहिए। मैथिल्डे जैसे कैरेक्टर जब गहनों को लेकर सुखी होना चाहते, सुंदर दिखना चाहते, लोग संपत्तियों को इकट्ठा कर खुश होना चाहते हैं। सिद्धार्थ गौतम की कहानी याद आती है कि सारी धन दौलत छोड़ने के बाद में सिद्धार्थ सुखी होते हैं। धन को, दौलत को, जवाहरात को, हीरो को छोड़कर सुखी हुआ जा सकता है, ये सिद्धार्थ ने अपनी पर्सनल जिंदगी से साबित करके बताया। हम लोग मटेरियलिस्टिक जिंदगी में जीते हैं और चीजों को इकट्ठा कर खुश होना चाहते हैं। मैथिल्डे के जिंदगी में यही प्रॉब्लम है। She got married, but she hopes that she deserves, she feels that she deserves all luxuries whatever are there in the world. दुनिया में जितनी लग्जरीज है वो सारी चीजें डिजर्व करती है। घर में जब भी वो बैठी होती है तो whenever she observes upbraided chairs, ugliness of the stuff, she get disgusted, disappointed, depressed because of this all. घर में जब भी बैठती है, पुराने से चेयर्स को देखती है, अगलीनेस ऑफ स्टफ को देखती है, बाद में और निराश हो जाती है। उसको ऐसा लगता है अड़ोस पड़ोस की कोई महिला आके टॉर्चर कर देगी इन सारी चीजों से, एंड शी फील्स एंग्री एंड इंसल्टेड। अपने घर में क्या है नहीं है ये गणित लगाने का छोड़कर बाकी लोग क्या कहेंगे, इसी एक अलग से हिपोक्रेटिक सिचुएशन में हम जीना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों की यही समस्या है, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम दुखी हो जाते हैं। अपनी आम जिंदगी को, अपनी रेगुलर जिंदगी को, अपनी साधारण जिंदगी को भी हम जीना छोड़ देते हैं। और ये सब सारी चीजें मैथिल्डे को पश्चाताप कराती। She repents for this all and she wants to settle these all things, but her mind, her heart doesn't allow her. अपने घर में लगे हुए ओरिएंटल टेपेस्ट्रीज को देखती है, पर्दों को देखती है, वहां पर बहुत सारे पिक्चर्स है, डिजाइन्स बने हुए हैं। उन डिजाइन्स को देखकर वो कल्पना करती है कि बहुत आराम की कुर्सियों में बैठी है और आराम की शाही जिंदगी वो जी रही है,
and she laid her mind to dwell on a large parlets decked with the old silk. ओल्ड सिल्क से बने हुए पर्दों के ऊपर डेलिकेट फर्नीचर, बहुत बड़े बड़े लार्ज पार्लर्स, ये सब देख के वो अपने आप को सुंदर रूम्स की कल्पना करती है, परफ्यूम्ड रूम की कल्पना करती है, एक ककेटिश जो अरेंजमेंट है, क्लेवरली अरेंजमेंट होता है, उसकी कल्पना करती है. When she sat down to dine before the tablecloth, 3 days old. अब जब खाना खाने बैठती भी है, पति जब शाम को घर पे आता है तो उसका सारा ध्यान उन पर्दों के डिजाइन में है, पर्दों पे जो चित्रित किया गया है उसके ऊपर है. एंड she doesn't think about whatever is served on the table. She thinks about what is decorated on the tapestries. Tapestries पर क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पर जैसे ही पति शाम को आता है और उसने खाना सर्व तो किया, और what have food सर्व किया गया, एक फ्रेंच डिश है जहाँ एक मीट और वेजिटेबल को साथ में टेंडर लेवल पर पकाकर परोसा जाता है. तो पोटैफो एक पसंदीदा डिश है लॉयसेल के लिए, पर मैथिल्डी का बिल्कुल ध्यान नहीं है. एंड पति जब तारीफ भी करता है ऐसे डिश की, पर मैथिल्डी के कल्पनाओं में तो अलग अलग चीज है. वो कल्पना करती है कि कोई सर्विंग डिश में कोई अलग सी डिश, रॉयल फिश, रोजी फिश ट्राउट की हो या विंग्स वगैरह हो, इस प्रकार की बहुत सारी चीजों की वो कल्पना करती है, पर आम जिंदगी से ये सारी चीजें मैच नहीं करती. क्या हमने अपनी परिस्थितियों से आगे जाकर सपने देखने चाहिए? हाँ, देखने भी चाहिए, पर ऐसे सपने जो हमें दुखी करते हैं. इन सपनों से अगर हम दुखी होते हैं, हमारी सिर्फ एम्बिशंस बढ़ती है, और ये ओवर एम्बिशियस हमें अगर दुखी करता है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ सच काइंड ऑफ ड्रीम्स? नाउ मैथिल्डी always thinks about the dress and jewelry. उसके पास ड्रेसेस नहीं, no dresses, no jewelry and nothing, and she loved nothing. She felt herself made up for that. उसको बाकी चीजों की परवाह नहीं है. मैथिल्डी को हमेशा ये लग रहा है कि she is made up for these things only. She has the nature has given her birth only for jewelry and only to decorate herself, ornament herself, and adorn herself. And she has the only desire that other women should be jealous of her ornaments and her dresses. She had a rich friend, एक दोस्त भी है उनकी, जिसका जिक्र बाद में स्टोरी राइटर इस कहानी में करते हैं. मिसेस फ्रॉस्टर्स के बारे में हम जानेंगे. एंड साधारण दोस्त हो तो बात समझ में आती है, पर अपने से ज्यादा रईस दोस्त हो तो और परेशानी होती है. एंड दोस्तों से जब तुलना करते हैं तो उनके पास क्या है, हमारे पास क्यों नहीं है, चीजों में हम सारी चीजों को तोलना चाहते हैं. एंड शी वेप्ट ऑल डे लॉन्ग फ्रॉम chagrin, from regret, from despair and from distress. बस रात दिन यही दिमाग है. Day and night these things are reeling in her mind. She is disappointed, she is dejected, she is unhappy for not having the dress and jewelry, and she always compares. And these are regions which make the people unhappy. This is not the case of Mathilde only. ये Mathilde की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है. All people who are so extra ambitious for luxuries, they themselves become unhappy for not having these all things, and due to this mentality they spoil their present also. भविष्य की कल्पना करना, सपनों में खोए रहना, और इस चाहत में अपना वर्तमान भी लोग खराब करते हैं. बट वन इवनिंग, यहाँ से कहानी का एक दूसरा पड़ाव शुरू होता है. एक शाम को वन इवनिंग हर हस्बैंड इन with a proud air holding in his hand a large envelope. एक दिन शाम के समय पति अपने हाथ में एक लिफाफा एनवेलप लेके आता है. एनवेलप में एक इनविटेशन है. इनविटेशन भेजा है मिस्टर मिसेस जॉर्ज एंड ने, एंड there is an invitation for Mr. and Mrs. Loisel. Mr. and Mrs. Loisel के लिए एक invitation है. And it was requested to do them the honor to pass the evening with them at the palace of the ministry on Monday, January 18. जनवरी 18 तारीख को मंडे का दिन मुकर्रर था, डिसाइडेड था, और इनको इनविटेशन मिला. एनी हाउ लॉयसेल एडजस्ट करता है इस इनविटेशन को ताकि मैथिल्डी को एक आउटिंग हो जाए, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए,
और वो एक इनविटेशन लेकर तो आया और सामने रखा मैथिली की। इतने बड़े मिनिस्ट्री से, पैलेस से इनविटेशन आने के बावजूद भी मैथिली को खुशी नहीं हुई। कौन सी चीज खुश करेगी, राइटर भी अपने आप में श्योर नहीं है, क्योंकि ये टिपिकल फेमिनाइन नेचर है। उसने जैसे इनविटेशन को देखा, she threw the invitation on the table with annoyance, चिढ़ गई और बुदबुदाते हुए उस इनविटेशन को बाजू में डाल दिया। कंप्लेंट है, what do you want me to do with that? करना क्या है इनविटेशन से? पति को ऐसा लगने लगा, लॉइसल को, कि शायद इनविटेशन देख के मैथिली खुश हो जाएगी। जहां पर इनविटेशन हासिल करना, it was not possible for all clerks to manage such kind of invitation, but even then also anyhow he managed, he received, he got the invitation, and now he is trying to convince Mathilde to go for this party, but something different is going on in the mind of Mathilde. She is not happy with this invitation. On the contrary, she is unhappy, irritated, and annoyed. She says what she will do in that party. And what is the reason? She says she looked at him in an irritated eye and declared with impatience, what do you want me to put on my bag to go there? ठीक है, इनविटेशन लेकर है, पार्टी में जाऊंगी, पर मैं वहां पर पहनूंगी क्या? उसकी कंप्लेंट है कि उसके पास अच्छा ड्रेस नहीं है। कितने ड्रेसेस होते हैं हमारे घरों में, कबर्ड्स के, वार्डरोब्स के अंदर? ये सवाल हर एक व्यक्ति ने अपने आप से पूछना चाहिए। इसके बावजूद भी एक नए ड्रेस की फरमाइश है, एंड पति ने तो बोलना ही बंद कर दिया। He was very surprised to see such kind of unexpected reaction. एक इनविटेशन देखने के बाद में मैथिली ने खुश हो जाना चाहिए, पर बहुत सारी छोटी छोटी खुशियां भी हमें खुश नहीं करती हमारे ओवर एम्बिशियस होने के कारण। बहुत बड़े बड़े आंसू मैथिली की आंखों से आने लगे, और वो आंसू सफर करते हुए गालों से गुजरने लगे। फिर पति को रहा नहीं गया, एंड व्हाट इज द मैटर, कि पूछ ही लिया उसने कि क्या प्रॉब्लम है, समस्या क्या है। अपने आप को जैसे तैसे मैथिली कंट्रोल करती है, एंड she says only I have no clothes and in consequence I cannot go to this party. बस एक ही बच्चे, मेरे पास अच्छे ड्रेसेस नहीं है और मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती, नहीं जाऊंगी। इतनी सुंदर है मैथिली, ग्रेसफुल है, ब्यूटीफुल है, एलिगेंस है। गहनों से खूबसूरती में कितना अंतर आने वाला है पता नहीं, पर अपनी नेचुरल ब्यूटी को भूलकर हम जब गहनों से खूबसूरती ढूंढने, तलाशने करते हैं, तो मटेरियलिस्टिक चीजें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इस बात का। और हम इस कहानी को फ्रेंच बैकग्राउंड पर जब पढ़ रहे हैं, तो आप सभी रीडर्स, सभी ऑडियंस इस बात को समझिए कि फ्रेंच लोग अपने आप में बहुत फैशनेबल हैं। उनके ड्रेसेस, उनके कॉस्ट्यूम्स, उनके घर के टेप्स्ट्रीज वगैरह देखेंगे, हैट्स देखेंगे, फर्स के ड्रेसेस देखेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इतने अपने आप को सजाने में, सजाने में फ्रेंच पीपल बिलीव करते हैं। तो हो सकता है कि मैथिली इन सारी चीजों के लिए जेलस। अब एक ड्रेस तो मैनेज करना है, अब जब फरमाइश हुई है तो कैसा किया जाए? तो एक अंदाजा लेने की कोशिश की, ठीक है, विल एडजस्ट द ड्रेस फॉर यू, एंड शी रिफ्लेक्टेड अ फ्यू सेकंड। जब पूछा गया कि कितना हो सकता है, इस बात का अंदाजा तो मैथिली को है, और ज्यादा प्राइस बताऊंगी तो शायद ये साधारण सा एक वेरी फ्रूगल एंड इकोनॉमिकल जो क्लर्क है, miser in the stingy in the nature and doesn't earn much, he will not be able to manage the costly dress, and therefore she feels that let us be very adjustable, एक रीजनेबल रेट बता दिया जाए। और मैथिली कहती है मुझे पता नहीं है कि ड्रेस कितने तक होगा, पर 400 फ्रैंक्स में आ जाएगा। भारतीय रुपयों में अगर बात करें, तकरीबन 8,135 रुपए आज की तारीख में होते हैं। आप लोगों को इसलिए बता रहे कि अंदाजा हो जाए, एक साधारण सा क्लर्क जो महीने की गिनती की सैलरी घर में लाता होगा, उसके लिए भी 8,000 रुपए की कीमत का 400 फ्रैंक्स का ड्रेस खरीदना एक तकलीफ वाला काम तो होगा ही, पर पत्नी की बात रखने के लिए, मैथिली की बात रखने के लिए, इस बात के लिए राजी तो हो जाता है। पर जब हम दूसरों की खुशियों के लिए राजी, when we agree for the happiness of somebody else, we sacrifice our own happiness.
उनकी खुशियों के लिए जब हम एग्री हो जाते हैं, कीमत चुकाते हैं, तो हम अपनी सुखों को त्यागते हैं। लॉयसेल को ये करना पड़ा। उसके अपने प्लान्स थे कि दोस्तों के साथ समर में जाऊंगा, नैन्ठा के मैदानों पर मैं हंटिंग करूंगा। He had his own plans for next summer, but for the sake of Mathilde, he sacrifices, he quits from his own wishes and desires, and anyhow manages to arrange 400 francs for Mathilde, and he gives that amount to her to purchase a dress. ठीक है, पैसे मैनेज हो गए, दे दिए। अब एक काम तो हो गया। अब ड्रेस खरीदने के बाद में अपने मन के मुताबिक मैथिली ने ड्रेस खरीद लिया। अब तो खुश हो जाना चाहिए, पर उम्मीदें इंसान के खत्म होती है। चांद दे दो तो सूरज चाहिए, सूरज दे देंगे हाथ में तो और कुछ चाहिए। उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती, और हर किसी को मुकम्मल जवान नहीं मिलता। हर एक व्यक्ति को अपनी सब चीजें उम्मीद के हिसाब से नहीं मिलती। कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। हमें चॉइस अपनी आप के रखनी होती है। ड्रेस के बाद में फिर मैथिली की कंप्लेंट आई, इट अनॉयज मी नॉट टू हैव अ ज्वेल, नॉट अ सिंगल स्टोन। इतना सब कुछ तो आपने कर दिया, पर मेरे पास एक भी ज्वेल, एक भी गहना नहीं है, एक भी सिंगल स्टोन नहीं है, डायमंड नहीं है मेरे पास। आई शैल लुक लाइक अ डिस्ट्रेस। अगर बिना गहनों के, बिना डायमंड पहने अगर मैं किसी ऐसे पार्टी में जाऊंगी तो कितनी गरीब दिखूंगी, दुखी दिखूंगी। ये दूसरी समस्या आ गई। अब लॉयसेल के सामने और एक कश्मकश है। यू विल वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स। पति बेचारा साधारण सा क्लर्क के सजेशन दे दिया, कुछ फूल लेकर आओ बागीचे में। आजकल बहुत सुंदर सुंदर फूल आने लगे, स्टाइलिश, 10 फ्रांस में आ ही जाएंगे। एंड तुम वैसे भी सुंदर हो तो फूलों से तुम सुंदर दिखोगे ही। बट शी वाज नॉट कन्विंस्ड। पर पति के सजेशन से मैथिली कन्विंस नहीं होती। नाउ it is humiliating for her, and she wants to look rich among the rich women, rich guests. अमीर लोगों के बीच में जाकर मैथिली को भी अमीर दिखना है। अब रास्ता क्या निकाला जाए? The moment we cannot fulfill the desires, we try to adjust certain things. बहुत सारी चीजें हम एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर लॉयसेल एक सजेशन देता है कि go to your friend मिसेस फॉस्टर्स। मिस्टर फॉस्टर्स आपकी अच्छी दोस्त है, जाओ चले जाओ, और बहुत गहने भी है उनके पास, बोरो फ्रॉम हर, एक हाथ उधारी ले लो। इस आइडिया से मैथिली खुश हो जाती है। पर क्या उधार की चीजें लेकर हमने फैशन करनी चाहिए? ये सवाल हमने अपने आप को पूछना है। एक साइकोलॉजिकल फीमेल कैरेक्टर का एनालिसिस भी मौपासंत यहाँ पर करते हैं। ये हमने पहले ही कहा कि ये कहानी मैथिली और लॉयसेल की नहीं है। एक यूनिवर्सल फैक्ट इस कहानी में भी है। दुनिया के हर कोने में जहां कहीं भी आप इस कहानी को पढ़ेंगे, आपको लगेगा ये कहानी अपनी कहानी है। The next day she went to her friend and told her about this dress. The next day she goes to Mrs. Foster's. She talks about her problems, and Mrs. Foster readily agrees. She shows her mirrored wardrobe and give her the casket, a box of the jewelry, and ask her to choose one of them. आपको जो भी गहना इसमें से चुनना है। मिसेस फॉस्टर अपने वार्डरोब से कास्केट निकाल कर देखती है और उस बॉक्स से उनको एक गहना चुनने के लिए बताती है। बहुत सारे गहने देखने के बाद में खुशी से उछल उठती है मैथिली, और एक ब्लैक सैटिन में एक सुपर डायमंड नेकलेस वहां पर दिखाई देता है। हाथ उस नेकलेस को उठाते समय थरथराते हैं। She trembles and she tries her around her throat. अपने गर्दन के इर्द गिर्द उस नेकलेस को ट्राई भी करती है और पूछती है, कैन यू लेंड मी ओनली दिस? विलियम शेक्सपियर की और एक इम्पोर्टेंट पोएम आप पढ़ेंगे इसी सिलेबस में। बहुत सुंदर लाइंस विलियम शेक्सपियर की आती है वहां पर। नेवर बी बोरोअर एंड लेंडर। ना कभी चीजें उधार लेना किसी से, ना उधार देना। दिखने में बात बहुत साधारण लगती है कि विलियम शेक्सपियर जैसे कभी भी ऐसे कैसे बात कर लेते हैं, पर जब परेशानियां झेलनी पड़ती है उधार के चक्कर में, शो ऑफ के चक्कर में, तब विलियम शेक्सपियर की बात कितनी सच है बात समझ में आती है। उधार मांग लिया, कैन यू लेंड मी? मिसेस फॉस्टर ने रेडली उस डायमंड नेकलेस को दे दिया। उस नेकलेस को लेकर
मैथिल्डी सजती है, सवरती है, पार्टी के लिए निकल जाती है, और जैसे ही जो मकसद था, what was the purpose? To win the people in the party, to impress the people, to influence the people because of her elegance, because of her beauty, because of her jewelry. अपने ज्वेलरी से, अपने ड्रेस से, अपने दिखावट से लोगों को इम्प्रेस करना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना, इसमें गलत कुछ नहीं, nothing is wrong in that. हर एक हैंडसम व्यक्ति, हर एक ब्यूटीफुल व्यक्ति ये मन ही मन में चाहता है कि लोग उसे देखें, लोग उसे घूरे, पर उसके लिए मैथिल्डी ने जो किया, हम अंत में समझने का प्रयास करेंगे, whether we can support such kind of thinking or not. All the attaches पार्टी में जैसे ही जाती है, सारे लोग इस prettiest women को, उसके elegance को, उसके graciousness को, smiling को देखते हैं, and people go mad with joy. लोग पागल हो जाते हैं उसकी सुंदरता देखकर। वो नाचती है वहां पर, जैसे लगता है कि it was her day, ये पूरा दिन उसका था। and impression देखो, हर एक कोई उससे इंट्रोड्यूस होना चाहता है, बात करना चाहता है, and all attaches the cabinet wanted to dance with her. वहां पर मिनिस्ट्री की जो कैबिनेट भी आई होगी, the minister himself who invited her also was interested in introducing himself with her. Mathilde danced, delight with passion, intoxicated with pleasure. एक मैंने पहले कहा था कि वीर मपासा सोच समझकर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इंटॉक्सिकेटेड ये शब्द वहां पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे नशा हो, चरस गांजा लेने के बाद में, अफीम लेने के बाद में जो लोग नशे में चुर रहते हैं, इंटॉक्सिकेशन एक वैसी ही अवस्था है। खूबसूरती भी अपने आप में कम नशा नहीं होता, दिखावापन, जेलसी या पैसा, धन दौलत, संपत्ति, ये भी कम नशा नहीं दिलाते इंसान को। Thinking about nothing in the triumph of her beauty. ऐसा लग रहा था कि सारी सुंदरता जीत गई, दूसरे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, पर सारी दुनिया उसके लिए ऐसा हो गया कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया है। And she went away about 4 in the morning. रात भर पार्टी चलती रही, सुबह का समय होते आया, और in the dawn at around 4 in the morning, she was ready to go out now. Since the midnight, her husband has been dozing in the little after anteroom with the 3 other men with wives. आपको सुनकर ताज्जुब लगेगा, you will be very surprising to know when Mathilde is busy in dance with other people, what her husband was doing. उसके खुद के पति लॉयसल क्या कर रहे थे? वो एक बाजू में जो कमरा था, एंटी रूम था, वहां पर और बेचारे कुछ ऐसे दुखी पति होंगे, पत्नियां डांस कर रही थी और वो बेचारे उस कमरे में नींद ले रहे थे एंड इंतजार कर रहे थे कि बीवी का एक बार का डांस हो जाए फिर घर चले जाए। जैसे ही डांस खत्म होता है, मैथिल्डी आती है, उसको लगता है कि ठंड बहुत ज्यादा है, he tries to wrap her with a very ordinary cloth. मैथिल्डी को ऐसा लगता है कि इस ऑर्डिनरी क्लोथ से उसकी सारी ब्यूटी, सारा एलिगेंस ड्रेस का ढक जाएगा, वो मना करती है, एंड विद अ मिनट यू विल कैच कोल्ड आउटसाइड। हस्बैंड इज केयरफुल अबाउट हर, पति को चिंता है, ही केयर्स फॉर हर, पर पत्नी को लगता है कि इतने साधारण से ड्रेस को, कपड़े को अगर मैं ढकने के लिए इस्तेमाल करूंगी तो किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे लोग, ये किसी ने देख लिया तो कौन क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। इसी चक्कर में मिडिल क्लास की जिंदगी रईसी और गरीबी के चक्की में पीसते रहती है जिंदगी भर। The drivers whom they saw the passing, anyhow, अब इतने लास्ट आवर्स में कोई भी कैब तो मिलने सरा कर जाने के लिए, anyhow उन्होंने कैब मैनेज किया। ये साधारण सी कैब थी, नाइट हॉक कैब्स जिसे कहते हैं, ये रात के ही अंधेरे में चलती थी, शायद इतनी पुरानी सी कैब थी कि वो खुद ही दिन के उजाले में चलना नहीं चाहती होंगी। राइटर यहाँ पर एक सिचुएशन को बताते हैं, जैसे तैसे करके रूट अपने घर में वो पहुंचते हैं, पार्टी हो गई, ड्रेस हो गया, डायमंड का नेकलेस पहन के हो गया, लोगों ने तारीफ कर ली, ऑल praised her, she won the world, she got a triumph and she is the happiest person in the world at this moment. पर जब घर वापस आई, she took off the wraps उसने हटा लिया, and she had to cover her shoulders before the mirror. फिर उसने सोचा कि चलो एक बार अपने आप को निहार लेती हूँ आईने में,
let me watch myself, let me observe in the mirror. बाद में ये मौका मिले ना मिले, because she has to return the diamond necklace to Mrs. Foster also. उनको वापस भी करना है. जैसे ही वो आईने के सामने खड़ी होती है, अपने आप को आईने में देखती है, एक शॉक लगता है उसको. She gave a cry and she no longer had the ace around her throat. उसके गले में जो डायमंड नेकलेस था वो गायब था, है ही नहीं. Her husband, half undressed, already asked, "What is the matter with you?" जैसे आईने में देखा, नेकलेस गायब था, दिख ही नहीं रहा था. दोनों परेशान हो गए, एक दूसरे से पूछने लगे कि डायमंड नेकलेस कहाँ गया. ड्रेस के पॉकेट्स में ढूंढा, और स्रैप्स के कवर्स में ढूंढा, जिधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर दिख नहीं रहा. They were frightened, they were afraid of these all things, क्योंकि डायमंड नेकलेस मजाक नहीं है. कहीं उस बॉल डांस में तो नहीं गिर गया, कहीं कैब में तो नहीं गिर गया आते आते. बहुत ढूंढने का प्रयास वो कर रहे हैं, और कैब का नंबर तो लिया कम से कम जिस कैब में वापस आए थे. Neither Mathilde bothered to take the number of the cab, nor Loisel. अंधेरे में पुरानी सी कैब में नंबर ही नहीं था शायद, तो ना तो नंबर लिया, ना तो कैब के बारे में आता पता है. कैसे ढूंढेंगे? उनको लगा अगर गिर गया होता रास्ते में तो पता तो चलता कम से कम. पर रास्ते में भी ये डायमंड नेकलेस उन्हें के गिरते हुए दिखाई नहीं दिया. और अभी डायमंड नेकलेस कंप्लीटली हो गया, इस बात का अंदाजा तो हो गया. न्यूज़पेपर में, कैब में, पुलिस स्टेशन में, जाने जहां जहां पॉसिबल था हर जगह उन्होंने ढूंढने का प्रयास किया. पर द मोमेंट दे रियलाइज नाउ दैट it is not possible to find the gold necklace, the diamond necklace. Now, Loisel is suggesting Mathilde to write a letter to her friend that there is some problem. A clasp टूट गया, clasp of the necklace, and you have to repair it, and it will take little bit time, and she will return it very soon to Mrs. Foster. इस बात को लिखने के लिए वो कहता है कि थोड़ा बहुत समय मिल जाए. पर जैसे सांप सूंघ गया हो मैथिल्डी को, डायमंड नेकलेस खो जाने के बाद में ना तो सोचने की अवस्था में थी, ना तो सोने की अवस्था में थी. आंखों से नींद गायब है और दिमाग काम नहीं कर रहा है. जैसे लॉयसल बताता क्या वो लिखती गई. अब एक ही उपाय है उनके पास. आपने इतनी बड़ी महंगी चीज उधार तो ले ली, you borrowed this already. Writer wants to guide you, advise you not to borrow the things from others, but she borrowed and she lost also. अब भर के तो देना पड़ेगा, you have to replace it. क्या किया जाए इस कश्मकश में? अब दोनों हैं, and it was not I, madam, who sold the necklace. I only supplied the case. उन्होंने वो जो कैस्केट था उसके ऊपर एड्रेस ढूंढा, पर जिस एड्रेस पर वो पहुंचे ढूंढने के लिए, उसने कहा कि मैं सिर्फ इस प्रकार के बॉक्स बनाता हूं, मैं ज्वेलरी तो बेचता नहीं. वहां भी निराशा हुई. फिर सारे मार्केट में घूमने के बाद में एक दुकान ऐसी मिली, एक शोरूम ऐसा मिला जिसका नाम था पैलेस रॉयल. वहां पर उनको एक डायमंड नेकलेस सिमिलर दिखता है, क्योंकि भर के तो देना पड़ेगा, रिप्लेस तो करना पड़ेगा. इस डायमंड नेकलेस की प्राइस थी 40,000 फ्रैंक्स. 40,000 फ्रैंक्स तकरीबन इंडियन रुपए में अगर देखा जाए तो 32,54,000 के ऊपर के अमाउंट है. देखो 32 लाख का डायमंड नेकलेस, हमारे जैसे साधारण लोग भी अगर किसी का उधार लेते और गमाते हैं तो भर के कहां से देंगे? They could have it for 36. They begged the jeweler not to sell in 3 days. उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि 3 दिनों तक हम कुछ भी करके पैसे मैनेज करते, आप बेचिए मत. 34,000 फ्रैंक्स में एग्री हो गया बेचने के लिए. ये भी अमाउंट कम नहीं होता, तकरीबन 27,66,000 के ऊपर इंडियन करेंसी में अमाउंट जाएगा. और इतना सारा पैसा अरेंज करना है झूठी शान दिखाने के चक्कर में. लॉयसल को क्या क्या भुगतना पड़ता है इसका वर्णन राइटर आगे करते हैं. अब जो जहां से पॉसिबल था, he borrowed the remainder. उसके पास जितना पैसा था उसने, रिश्तेदारों ने, माँ बाप ने जो छोड़ के गए थे, वो 18,000 फ्रैंक्स उन्होंने इस काम के लिए खर्चा करने के लिए सोचा.
जिंदगी के लिए काम में आ रहे थे, अब उधारी चुकती करने में जाएंगे पैसे। Borrowed, asking 1,000 francs one, 500 from other, 5 here, 5 from there, जहां जहां से हो सकता था। प्रॉमिसरी नोट साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, चेक दे दिए लोगों को, ऑनर्स होंगे या डिसऑनर होंगे पता नहीं। इतना सब कुछ सिचुएशन ने उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कंपेल किया, और जिंदगी के आने वाले सारे दिनों को उन्होंने इस लॉस को भरने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया। एंड कॉम्प्रोमाइज द एंड ऑफ हिज लाइफ, risk his signature without even knowing whether it could be on it. साइन जिस कागज पर लोगों ने साइन मांगे, सिग्नेचर मांगे, उन्होंने सिग्नेचर दे दिए, पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और यहाँ से फिर जिंदगी का एक अलग ही अध्याय शुरू हो जाता है। 36,000 francs भर के तो देने हैं। And when Madam Lloyd took back the necklace, Mrs. Foster, the latter said with an irritated, "You ought to have brought it back sooner." जैसे तैसे करके 36,000 francs में इस नेकलेस को हासिल किया, और ये ले जाकर मिसेस फॉस्टर को उन्होंने लौटाया। आज नहीं कल तो दे दिए रहते तो चल गया होता, ऐसे मिसेस फॉस्टर कहते हैं, और बिना नेकलेस को चेक किए देखे उन्होंने उस बॉक्स को अपने वार्डरोब में रख दिया। मैथिल्डी फिर भी डरती है, अगर देख लिया होता तो कहीं पता तो नहीं चलता कि मैंने बदल दिया है। अब यहाँ से जिंदगी का एक अलग अध्याय शुरू होता है। एक बुरे सपने की तरह जिंदगी शुरू होगी। घर के सारे नौकर चाकर उनको छोड़ने पड़े, पैसा ही नहीं बचा एक भी, हालत कर्जे से दब गई पूरी। एंड शी वुड पे इट, दे डिसमिस्ड द सर्वेंट्स, दे चेंज द रूम्स, कमरे बदल दिए, टुक द एटिक अंडर द रूफ, शी लर्न द रफ वर्क, घर के सब काम करने पड़े, कपड़े धोने से लेके किचन के काम है, मार्केट में जाना है, बार्गेन करना है, डर्टी कपड़ों को धोना है, पर्दों को धोना है, गार्बेज कचरे को फेंकना है, बहुत सारे काम। अब मैथिल्डी को, जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की होगी, ये सारे काम उसके हिस्से में आ गए। पति को भी ऐसा लगने लगा कि सिर्फ एक क्लर्क की नौकरी से मैं कर्जे चुका नहीं पाऊंगा। फिर किताब शॉपकीपर के पास किताबें रखने के, साफ करने के काम के लिए वो भी लग गया। ऑफिस से आने के बाद डबल काम करना, और इतना सब कुछ 10 साल तक चलता रहा। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years। पूरी जिंदगी, पूरी उम्र, पूरी ब्यूटी, पूरी खूबसूरती इस 10 साल में पिस गई, चली गई। और अचानक इस सारी जद्दोजहद से गुजरते गुजरते मैथिल्डी बूढ़ी हो चली थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी खूबसूरती नियति ने खींच ली उससे। एक दिन अचानक एक गार्डन में वो घूमने के इरादे से वहां पर गई। एंड मिसेस लॉयजल तो अभी एक बूढ़ी औरत की तरह दिखने लगी। किसी जमाने में जितनी खूबसूरत दिखती थी, वो सारी खूबसूरती अचानक चली गई थी। शरीर की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता आज है, कल रहेगी, इसकी गारंटी नहीं। ब्यूटी जो है वो म्यूटेबल है। देयर इज नो परमानेंस अबाउट दिस, ऑल थिंग्स विल रिसीड बाय द टाइम, बाय द स्पैन ऑफ टाइम। एंड पति और पत्नी दोनों एक चक्की में पीस कर ये सारी जिंदगी, ये 10 साल की पूरी जिंदगी वो इस नेकलेस को, डायमंड नेकलेस को एडजस्ट करने में, इसकी प्राइस चुकाने में उन्होंने गवा दिए। फिर एक दिन वो शांसेलीज से एक गार्डन है फ्रांस में, वहां पर घूम रही थी। एंड शी परसीव्ड सडनली अ वुमन, एक अचानक महिला से मुलाकात होती है। इट वाज मिसेस फॉस्टर। जो महिला गार्डन में घूम रही थी एक छोटे से बेबी को लेकर, अभी भी वो युवा लग रही थी, फ्रेश लग रही थी एकदम। मैथिल्डी को विचारा है कि उसकी सहेली मिसेस फॉस्टर अभी भी यंग लग रही है इतने समय के बावजूद भी, और एक नौकरानी की तरह मैथिल्डी की हालत हो चली थी। जैसे ही उसने आवाज दिया, एक कश्मकश भी थी। देयर वाज कंफ्यूजन इन हर माइंड वेदर टू टॉक विद हर और नॉट। पर मैथिल्डी सोचने लगी, नाउ शी हैज रिप्लेस द नेकलेस, शी हैज रिफंडेड फॉर, पैसा भी दे दिया, नेकलेस भी रिप्लेस हो गया, शी हैज पेड ऑल डेट्स, सारे कर्जे भी चुका दिए, क्या बात की जाए। उसने सोचा व्हाई नॉट। शी ड्रू नियर, फिर मिसेस फॉस्टर के पास चली जाती है नजदीक और पूछती है, गुड मॉर्निंग जेन। आवाज देती है, आवाज तो फैमिलियर लग रही थी, पर चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था मिसेस फॉस्टर को। कौन है ये ऐसे गरीब भिखारन से दिखने वाली औरत आवाज दे रही है? शी हेजिटेटेड।
बट मैम आई डोंट नो, मैं तो आपको पहचानती ही नहीं। फास्टर ने कहा, आर यू नॉट मेकिंग मिस्टेक, कुछ गलती तो नहीं कर रही? नहीं, उसने कहा मैथल डिलॉयसल। नो मैम, मैं मैथल डिलॉयसल हूँ। अरे, उसको देखकर मिसेस फॉस्टर चौंक गई। माय पुअर मैथिल्डी, हाउ यू आर चेंज्ड, कितनी बदल गई हो तुम। मैथिल्डी कहती, यस आई हैव हार्ड डेज सिंस आई सॉ। हाँ मैम, जब से मैंने आप लास्ट टाइम मैं मिली थी आपसे गोल्ड नेकलेस के चक्कर में, तब से ये सारी परेशानियां शुरू होगी। अरे, मुझसे मिलने के बाद परेशानियां शुरू हुई, ऐसा कैसे हो सकता है? हुआ क्या? यू रिमेम्बर दैट डायमंड नेकलेस? वो डायमंड नेकलेस आपको याद है जो आपने मुझे दिया था मिनिस्ट्री में बॉल डांस में पहनने के लिए? यस, हाँ दिया था। एंड देन व्हाट? हाउ कैन दैट बी? वो वजह कैसे हो सकती है तुम्हारे दुखों के लिए? सिंस यू ब्रॉट इट बैक टू मी, तुमने तो वापस कर दिया। मैथिली कहने लगी, आई ब्रॉट यू बैक अनदर जस्ट लाइक इट। वापस तो दिया, पर दूसरा खरीद कर दिया था हमने। एंड नाउ फॉर 10 years वी हैव बीन पेइंग फॉर इट। और पिछले 10 साल से हम सिर्फ कर्जा ही चुका रहे थे। You will understand that it was not easy for us. एक साधारण से क्लर्क के लिए इतना बड़ा अमाउंट 34,000 francs, लाखों का अमाउंट वापस करना पॉसिबल कैसे हो सकता है? Who had nothing, जिसके पास कुछ नहीं था। At last it was done and I am mighty glad. एक बात का कर्जा हो गया, देखे अभी मैं खुश हूँ। मिसेस फॉस्टर had guessed, वो अंदाजा लगाने की कोशिश कर दी कि ऐसा क्या हुआ। You say that you brought a diamond necklace to replace mine? मैथिल जी, तुम ये कह रही हो कि तुमने नया डायमंड नेकलेस ला के दिया रिप्लेस करने के लिए? यस, यू डिड नॉट नोटिस इवन डिड यू? हाँ, मैंने तो वापस कर दिया, आपने देखा नहीं क्या? दे वर एग्जैक्टली लाइक, वैसा ही तो था जैसे आपने दिया था, वैसे ही डायमंड नेकलेस वापस ला के दिया। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड जॉय। मिसेस फॉस्टर मच मूव्ड टुक हर बाय बोथ हैंड्स। ये सब देखकर मिसेस फॉस्टर तो हिल गई थी। क्या कहूं मैं, समझ में नहीं आ रहा था। मैथिल्डी के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़ लिए और वो कहने लगी, ओ पुअर मैथिल्डी, अरे बट माइन वेर फॉल्स। अरे, मैंने जो नेकलेस दिया था वो तो नकली था। एंड मोस्ट वेर वर्थ ऑफ 500 फ्रैंक्स। उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक्स ही थी, ज्यादा नहीं थी। इतने छोटे से अमाउंट के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगाने की जरूरत मैथिल्डी को पड़ी। यहाँ पर गीत मपासा अपनी कहानी को खत्म कर थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your scholarly, enlightening, wonderful, and excellent session. The way you narrated the story was indeed amazing. I'm sure that our students must have got immensely benefited by your outstanding talk, sir. Thank you so much once again. I now invite Dr. थैंक यू। Madhuri Siram, madam, to propose a formal vote of thanks. Dr. Madhuri Siram, madam, over to you. Thank you, Vaishali ma'am. Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes. So, very good morning, everyone. At very first, I would like to pay my homage to Rashtrasanta Tukadoji Maharaj and late Bapurauji Deshmukh, the founder chairman of Yashwanta Rural Education Society. And I am Madhuri Sidam, head Department of English, Yashwant Mahavidyalaya, Wardha. I take this opportunity to propose a vote of thanks for today's session. Okay, day 3 of BA Semester 4 Compulsory English Online Classes 2021-22, jointly organized by the Department of English of Barrister Sheshrao Wankhede Mahavidyalaya Mohpa, Dr. M.K. Umathe College Nagpur, Nabira Mahavidyalaya Katol, Jawaharlal Nehru Arts, Commerce and Science College Wadi, Nagpur. I express my deep sense of gratitude towards Bansod sir, as we have with us, okay, Dr. Umesh Bansod sir from J.M. Patel College, Bhandara, for giving his valuable and insightful address. And I'm sure it is a fruitful experience for all the students. You explained the topic in a simple and effective way, sir. We are really grateful to you.
and all the people present over here and the students who are present here. Thank you once again. Have a good day all. Thank you. Thank you so much, Madhuri Madam. Dear all, thank you so much for attending the session, and we shall meet tomorrow at 10 a.m. with another topic, with another resource person. Thank you so much. Till then, take care. And with the consent of the organizers, I declare that today's session is over. Thank you all once again, and have a great day ahead. Happy learning. Thank you all.